Hello, students. Welcome to the Pinnacle online platform. I am Rohit Marwa, your English educator. As you know, we have launched the video solution of Pinnacle SSC English 7600 plus TCS questions. And we have already completed first 450 questions. And we are now going to start another chapter. Let's start. You can also refer this video course to your friends so that they can join and enjoy this course. If you face any kind of doubt in this book, you can join this video course. Let's start. This one. Okay, 475 questions we have already done. Next one. I was angry on myself for making such a silly mistake. I was angry. Let's find the error. I am giving you only 1 to 2 minutes to solve this. Then pause the video and again, then see my video. Okay, students, let's start. You have only 15 to 20 seconds to solve this question. First, pause the video. Then, after that, continue and watch this. Okay, let's start. I was angry on myself for making such a silly mistake. Oh, first, I. There is a subject, was main verb. Angry is an adjective. Adjective, but angry. Let's discuss about this word angry. Angry takes two types of preposition with it. First, angry at. Another one, angry with students. First, angry at, angry with. I will tell you about these two preposition. Which type of preposition we should use after angry. When you will angry with something, angry at something means non-living. And when you will angry with someone, you will be angry with someone, then use angry with, and you will be angry with something, yeah, at something, then we use at. Means when you will be angry with some non-living thing, then you will use at. And you will be angry when there is a no living object, then you will use with, students. Okay, let's start. I was an angry on myself. Myself is a living reflexive pronoun, living, so we will use with. On is incorrect here, so there is an error in this part. Means this line is not correct, so error in this C. Let's start another sentence. Sunil refused to attend the meeting of association on Saturday. Find the error. This is a very simple sentence, students. Find the error. You have only 10 seconds. Just a second, I will come. Okay. Sunil refused to attend the meeting. There is no error till this part. Meeting. Attend the meeting of association. Association is specific because meeting of association, like it is a collection of something. Association like UK, USA, collection, and it is specific. You can use the definite article before it if you want to find the error. There is a little bit error, the association. You can also ignore these type of errors. Article based error is not very means specific errors. They are, they can be ignored sometimes, but in SSC these errors had come. So I'm telling you about this of the association. You should use of the association. Okay, students, let's start another one. Alex picked up the boxes quite easily, even they were heavy. Okay, even they were heavy. Alex picked up the boxes. Second form. यहाँ पे क्या लगी हुई है बच्चों? Second form. Alex picked up the box. Okay. Next. Quite easily, even they were heavy. Quite easily. उसने बॉक्स तो उठा लिया काफी आसानी से. Even they were heavy. Even तो यहाँ पे कंजंक्शन
is not correct there. Even though, I will tell you about the conjunction even though. इसका मतलब क्या होता है? It is used for contradiction, students. It is used for contradiction. Meaning is भले ही, ठीक है? Contradiction. It is used for showing contradiction. एलेक्स ने बॉक्स उठा लिया क्वाइट आसानी से, भले ही वो हैवी था, भले ही. Contradiction दिखानी है ना? Even though, you should use even though here. Even is not an even is an adjective adverb. We need here conjunction. Okay. When you use even though, then sentence will be automatically correct. Let's start again. Here is the error. Next. Mrs. Verma refused the second helping of ice cream. Mrs. Verma refused. There is second form. So अगर आपके पास सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सो आपको इतनी कोई जरूरत नहीं है कि एरर निकालना है. फर्स्ट क्यों नहीं लगाई? बिकॉज देर इज नो हिंट. इफ देर इज हिंट ऑफ डेली, राइट नाउ, टुमारो, then we will correct the form of verb. If there is no hint, so you don't need to correct this form. First form, second form, all are correct. ठीक है? If there is no hint, all tense are correct. Yes, students. Mrs. Verma refused the second helping of ice cream. Second helping. You should know the meaning of second helping. Students, second helping means refill. Refill means second portion of something. Second portion of something. इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि उस मिस्टर वर्मा ने मना कर दिया कि वो आइसक्रीम और नहीं लेगा. एक बार वो खा चुका था, दोबारा नहीं लेगा. ये इसका मतलब है. दूसरा पार्ट इसका नहीं लेगा, दोबारा उसके आगे मत दो ये आइसक्रीम, वो नहीं लेना चाहता बच्चों. तो आपका एरर हो गया बेटा. इस पार्ट में एरर है ही नहीं. सेकंड हेल्पिंग भी सही है, ये भी सही है. नो एरर जाएगा. ये तो बच्चों क्या जाएगा? नो एरर. ओके स्टूडेंट्स, सोल्व दिस. गेट अप, दिस इज अ V1. And imperative sentence always starts with V1. Imperative sentence. Which type of sentence is this? Like direct order. When we give direct order, request and advice to someone, then we use imperative sentence and always use V1. Always use V1. क्लोज द डोर, गेट बंद कर दो. क्लोज द डोर, यहां से चले जाओ, गो अवे. ठीक है? तो आपने 12 टेंस बच्चों पढ़े होंगे. 12 टेंस में से कोई भी टेंस आपको इस तरह की हिंदी नहीं देगा, गेट बंद कर दो, कोई भी नहीं देगा. 12 टेंस से अलग चीज है ये बेटा, बिल्कुल ही टेंस से अलग जाना पड़ेगा आपको ये सीखना है तो. ठीक है बच्चों, जस्ट ए सेकेंड. दुनिया की हर लाइन बच्चों टेंस से नहीं बनाई जा सकती. कैसे नहीं बनाई जा सकती मैं आपको बताता हूं. देखो, जैसे मैंने बोला काश मैं पीएम बन जाऊं, काश मैं पीएम बन जाता, ये भी टेंस से नहीं बनेगा. 12 टेंस है आपके पास. देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर. यू कांट मेक द इंग्लिश ऑफ दिस लाइन. काश मैं पीएम बन जाऊं या काश मैं पीएम बन जाता, गेट बंद कर दो. तो अलग से भी टेंस से बाहर भी कुछ सीखना पड़ता है. पर वर्ब की फॉर्म वही 4 है. किसी भी प्ले की वर्ब की फॉर्म बताओ. फर्स्ट, सेकंड प्लेड, थर्ड प्लेड, फोर्थ प्लेइंग. राइट की भी वही फॉर्म है, वही शक्ल है हमारे पास. राइट, रोट, रिटन एंड राइटिंग है फॉर्म वही 4. पर दुनिया में लाइन बहुत है. गेट बंद कर दो, काश में पीएम बन जाता, तो इन्हीं फॉर्म का यूज करके ही आप कुछ बना सकते हो. तो जब भी किसी को डायरेक्ट ऑर्डर दो, रिक्वेस्ट करो और एडवाइस करो, यू शुड यूज V1. स्टूडेंट्स, यू शुड यूज V1. क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, इस तरह का. तो यही है, अपने जगह से उठ जाओ, गेट अप, V1. ठीक है? प्लेस, गेट अप योर प्लेस, स्लो. ये देखो यहां गलत हो गया बेटा. टर्न अराउंड, गेट अप एंड टर्न अराउंड, ये वही V1 है. गेट अप एंड टर्न अराउंड, ये V1 ही है. बट यहां पर स्टूडेंट्स गेट अप को क्वालिफाई करना है, वर्ब को क्वालिफाई करना है. देन वी शुड यूज एडवर्ब्स, नॉट एडजेक्टिव. स्लो इज एन एडजेक्टिव, बट यहां वर्ब अपने लिए कुछ मांग रही है, हाउ की साउंड मांग रही है. लाइक दिस, ही रन्स हाउ, सो वी शुड यूज स्लोली. बट इफ वी नीड टू क्वालिफाई सब्जेक्ट, then we use linking verb, then you can use slow. If you want to qualify pronoun or a noun, then you should use adjective. If there is a requirement, then you should use adverb if you want to qualify verb. Okay students, here we need to qualify this get up how. Okay students, so you should use adverb slowly. Where is the error? Okay, this line is incorrect. ये line बिल्कुल गलत लिखी हुई है students. Next, find the error in this sentence students.
We bought 2 dozens mangoes from the market. We bought 2 dozens mangoes from the market. करिए इसे. Yes. Students, see this sentence. We bought 2 dozens mangoes from the market. I want to tell you about these words: dozen, thousand, hundred, million, and billion. If we put numerical value before them, 2, 3, 4, 5, 6, you will not make them plural. You will not make them plural. You can't say 3000s. अगर आप इसको हिंदी में भी कहेंगे तो आपको गलत लगेगा. 3000, 4 करोड़ों नहीं होता. 4 करोड़, 3000. ठीक है. आगे 3 लाखों नहीं होता. 3 लाख. But if we remove numerical number before them, then you can say लाखों बच्चे आए थे, करोड़ों लोग आए थे. But if you put number before them, then it remains singular. So these nouns are different from other nouns. When we put 4 before boy, देखो जब हम बॉय के आगे 4 लगाते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है. 1 लिखते हैं तो ये सिंगुलर रहता है. बट दीज वर्ड्स आप इनको कितना ही बड़ा नंबर इनके आगे लगा लो, ये सिंगुलर रहेंगे. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि 4 और बॉय यहाँ पे, ये 4 और बॉय बिल्कुल अलग अलग हैं. बट यहाँ 1000 बच्चों और 3 ये एक ही इसके अंदर ही चला जाता है. 3000 का कुल मिला के बच्चे यही नहीं हो गया मतलब, तो ये इसके अंदर ही चला, एक ही वर्ड बन गया. 400 का मतलब यही नहीं हो गया बच्चों, तो इसलिए ये एक ही वर्ड होता है. ये अलग अलग है इसलिए प्लूरल हो जाता है. तो इनको प्लूरल मत किया करो जब इनके आगे न्यूमेरिकल नंबर हो बच्चों. ठीक है. तो वी बोट 2 डजन मैंगोस, और इनके साथ आप रख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं. ऐसे 200 मान लो, 2 डजन मतलब 24 मान लो मैंगोस. ऑफ भी लगाने की जरूरत नहीं है. बट अगर आप नंबर नहीं लगाते ना, तो हम बोलते भी हैं बच्चों सैकड़ों लोग आए, लाखों लोग आए, हंड्रेड्स ऑफ, तब बीच में ऑफ लगता है. पर इनके आगे कोई नंबर लग जाए तो सीधा लिखते हैं. तो 2 डजन का मतलब 24 मैंगोस. ठीक है. 200 का मतलब 200 बॉयज, बीच में ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू पुट ऑफ. इफ देयर इज एरर इन दिस बुक, यू शुड करेक्ट इट. ओके. वेयर इज द एरर? 2 डजन्स. ये एरर हो गया सी में. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट देखिए बच्चों. ओके. देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ पैसिव सेंस. पोल वाज, इसको काट लिया गया एक डॉग के द्वारा. ठीक है. व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्चा था. सारा पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, सो यू डोंट नीड टू करेक्ट द टेंस बिकॉज देयर इज नो हिंट दैट प्रेजेंट टेंस यू शुड यूज फ्यूचर टेंस. देयर इज नो हिंट. सो लेट मी टेल यू द 3 forms of bite: bite, bit, and the bitten. Like hide, hid, and the hidden. So you should correct it. Okay. I'm coming. Let Okay. So there is a sense of passive, and the passive formula of was plus V3. Okay. Is MR plus V3. Be की form plus V3. When there is a sense of passive sentence, you should always use be plus verb की third form. Okay, students. Then we will use here was. Okay. Bited is incorrect. Here you should use bitten. Then it is a past indefinite passive sentence. Okay. Let me tell you the error in this sentence, students. B is incorrect. Okay, student. बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो करेक्ट दिस सेंटेंस वेरी इजी. गिव मी वाटर सर. जस्ट a second, students. I am coming. Yes. You and I. Okay. यू एंड आई. आपने सुना होगा अगर 2-3 सब्जेक्ट आ जाए और पॉजिटिव सेंस है, काम करना ये सब, तो पहले ये रखते हैं 2, 3, 1. नेगेटिव सेंटेंस में 1, 2, 3 लगते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. बट
2 3 1 इफ देयर इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग ये नहीं है कि नोट लगा होगा। नेगेटिव सेंटेंस मीन किसी पे आरोप लगा देना कि तुम इसके जिम्मेदार हो, यू हैव डन बिग ब्लंडर, तुम हो ढोंगी। सिंपल काम है तो 2 3 1 सही है। और अगर कोई एक आधा नहीं है तो प्रॉपर फॉर्म वही रहेगी, इनमें 2 3 1, पहले 2 आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा। अगर यही दोनों दिए हुए तो 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये दोनों दिए हुए तो 2 आ जाएगा फिर 1 आ जाएगा। ये पोजीशन आपको लगानी पड़ेगी, ये हायरार्की आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी स्टूडेंट्स। यू एंड आई, यू एंड आई बिल्कुल सही है, हैव सबमिटेड बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, पोजेशन। पोजेशन के लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूं। ये जो था सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अरेंज करने का सेंटेंस है। पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर 1 आएगा, नहीं तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा देन 3 आएगा। नेगेटिव सेंस में ये पॉजिटिव है, बट पोजेशन किसी को नहीं पता, ये मैं आपको सिखाता हूं। लेट मी शो यू स्टूडेंट्स। इफ यू यूज सब्जेक्ट ही, then he has done, you should use his here to show the possession of this person. He had done his work, his car. If there is she here, you should use students her work. You should use your work. But there is only, if there is only I here, okay, then you should use student my. If only you, then you should use students your. But there is both, okay students, there are both you and I here, then you should use students according to which pronoun, I or you. You can't tell me, so I am telling you the concept. If you want to use possession, for possession this is the rule, 1 2 3 again, 1 2 3 for possession. If अगर सेंटेंस में तीनों पर्सन आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तीनों पर्सन, तो आपको फॉलो करना है स्टूडेंट्स, 1 को रेफरेंस देनी है, देन सेकंड को, देन थर्ड को। अब यहाँ दोनों आ गए, यू एंड आई, फर्स्ट और सेकंड पर्सन। फर्स्ट होता है ना आई और यू सेकंड पर्सन, तो आपको 1 के अकॉर्डिंग पोजेशन देना है। अब क्या कहोगे 1 के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ माई लिख दे? माई नहीं बच्चों, माई नहीं, 1 को देना है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, पर 1 का प्लूरल वाला, आई का प्लूरल लो, क्योंकि 2 जने हैं। अकेला आई होता तो माई आता, ये तो 2 जने हैं, तो आई का प्लूरल आपको पता है फर्स्ट पर्सन में वी भी होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ 2 जने हैं। लिया मैंने फर्स्ट पर्सन, या यूं ना कहना फर्स्ट नहीं लिया आपने, लिया फर्स्ट ही है, पर आई के नहीं, इन दोनों को मिला के वी मानना है आपको, ठीक है, प्रेफरेंस वाइज। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे यू और ही होता तो मैं यू की मानता 2 3 में, और यू का प्लूरल कर देता बच्चों यूअर। और यूअर भी कौन सा यूअर है, एक वाला यूअर नहीं है, ज्यादा को भी यू कहते हैं, एक को भी यू कहते हैं, तो ये प्लूरल वाला यूअर है बच्चों। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, यू एंड आई को प्रेफरेंस देनी है तो आप करो अवर को यूज। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ओके, आई डू नॉट लाइक वर्ब है, we can use infinitive or gerund both after like these an adjective here and kind is a noun here. So you should know students, I know you absolutely know that students, after this you should use singular noun, this chair, but after these students you should use plural, these chairs, these benches, these kinds. okay students, पार्ट में एरर हो गया, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखिए, इजी है बिल्कुल, करिए एक सेकंड में। यस देखिए, आई और वी के साथ शेल लगता है अगर क्वेश्चन हो तो, क्योंकि आई और वी के साथ शेल लगाना इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें कम पॉसिबिलिटी होती है, आई और वी के साथ शेल, और क्वेश्चन में हमेशा ही कम पॉसिबिलिटी होती है, डेफिनेट तो नहीं होता, पक्का तो नहीं होता। मैं अगर तुम कह रहे हो क्या मैं जाऊंगा, तो आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन में आप कभी कंफर्म नहीं हो सकते, हाँ और ना में अटके हुए हो। तो स्टूडेंट शेल भी ठीक है, गो ठीक है, बस मैं आपको यूं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, गो फॉर अ वॉक, ये भी आपको मैं कॉन्सेप्ट एक सेकंड में बता रहा हूँ, एक सेकंड, ये माइक ठीक कर। यस, गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क, ये भी सही है वैसे तो बच्चों, जेरेंड आ गया, इसके बाद आना चाहिए प्रीपोजिशन, आ गया प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड आता है, बट ज्यादातर हम इस फ्रेज को ऐसे यूज करते हैं बच्चों। गो फॉर वॉकिंग भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादातर ये कहते हैं अगर एरर निकालना चाहे तो, वैसे तो नो एरर पर उन्होंने कहा एरर निकालो,
पर मैं आपको बता दूं, गो फॉर अ वॉक, जितनी भी वर्ब है उसको नाउन बना देना होता है, वॉक, ठीक है। लेट्स हैव, अब टॉकिंग लिख सकता हूं, नहीं लिखूंगा मैं, टॉक लिखूंगा, हैव अ टॉक। तो आपको इसे नाउन की तरह यूज करना है जितनी भी वर्ब है, और उसके आगे फिर आर्टिकल लगा देना है। गो, अब ये वर्ब है वैसे तो वॉक, क्योंकि V1 है ना ये, इसको आप नाउन की तरह यूज करोगे और फिर ए आर्टिकल लगा दो, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन तो आता ही है, ओरिजिनल वाला नाउन। जेरेंड भी आते हैं, मान लिया बात, पर प्रीपोजिशन वाला नाउन भी आता है, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि एरर इस पार्ट में निकाल दिया जाए, इस फ्रेज को पूरा करना चाहते हैं, गो फॉर अ वॉक, अ राइड, इस तरह से जितनी भी वर्ब होती है उन्हें नाउन बनाना ना, टॉक को ए लगा दो आगे, बस वॉक के आगे ए लगा दो। हैव अ बाथ, ये देखो हैव, बाथ वर्ब होती है, इसके आगे वर्ब इसको बना दिया इसने हैव को, और आगे ऑब्जेक्ट लगा दिया नाउन, ठीक है बच्चों। इस पार्ट में एरर है, ये करिए। Vivek should be excited on the promotion he got. Excited, you should use preposition for, students, after excited. You should use preposition for. Vivek should be excited for the promotion because it shows purpose. And for purpose, you should use for, not on. On use for surface, to show surface. Like he is sitting on a roof, he is sitting on a bench. So remove on and put here for. Error is the error because it shows purpose. Among you and me, she is quite rude to the boy. Among, हम दोनों के बीच में वो बड़ा ही rude है, ठीक है। ये rude adjective है because there is a linking, or after linking or you should use adjective, and here to qualify adjective here is a adverb. This is an adverb. Among you and me, okay. Among used for more than two persons. Among is more than two. Like he has distributed his wealth among his four sons. More than two. More than two. Okay, but between used for more than two, not used for two person only. Sorry, used for two persons. And between is preposition, among is a preposition, and after preposition and verb you should use objective case. Objective case. He is going with me, not I. He knows me, not I. After verb and preposition you should use objective case. Among preposition, you and me is okay, objective case, but among is not good there, not correct. You should use between. You should use, students, between here. Okay, correct, correct this sentence. Okay, students, I want to tell you that some verbs take object after them, like I play cricket, students, and some intransitive verbs do not take object after them, they take adverbs. He runs how? Slowly. Like he sit where? On the bench. Okay, student, sits मान लो इसे present tense. You should use present tense. Okay, students. Then some verbs. Okay, some verbs take objects, some verb takes adverb, but some linking verbs take adjective after them, not object. Like he is good. See, students, this is an adjective because when you use linking verb between after subject, it qualify subjects. Subject. इट क्वालिफाई सब्जेक्ट। जब भी आप लिंकिंग वर्ब बीच में डाल देते हो स्टूडेंट्स, ये ही को क्वालिफाई करते हैं, ही को, नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। बट वर्ब, ये वाली वर्ब आगे ऑब्जेक्ट की साउंड निकालती है, क्या खेला, कैसे करा, कैसे हुआ। बट ये इज कह रही है मुझे छोड़ दो, मैं बीच में लिंक कर रही हूँ ही को, और ही क्या है बच्चों, नाउन या प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के लिए कौन सा टॉपिक आएगा, एडजेक्टिव, ही को, या फिर वो खुद का खुद, ही इज अ टीचर, तो ये नाउन हो गया। आर्टिकल लगाओ तो नाउन, पर 90% केस में ज्यादातर एडजेक्टिव। He is a teacher, he is a singer, Ram is a teacher, Ram is a singer, yeah, Ram is good, Ram is honest. Then I want to tell you, is, am, are, these are linking verb. Get also a linking verb, become also a linking verb. So should use, you can use become. He became, he became। अब ये became बीच में लगा दी स्टूडेंट्स, अब ये ही बना है जो बना है, तो यहाँ ही कोई क्वालिफाई करना है। ही क्या है, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन निकलता है। एडजेक्टिव यहाँ एंग्री लिख दो, ऑनेस्ट लिख दो, गुड लिख दो, कुछ भी लिख दो। अपीयर्स, ही अपीयर्स, अपीयर, ही कोई क्वालिफाई करेगी, कैसा लग रहा है वो, ही कैसा लग रहा है, जो भी लग रहा है, गुड बैड, ठीक है। तो ये गेट भी बेटा लिंकिंग वर्ब होती है। आई गोट मैरिड, आई गोट सिलेक्टेड, इनके बाद ज्यादातर थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव आते हैं बच्चों, क्योंकि थर्ड
V3 adjective also exists in English grammar like confused person, sad person, depressed person, decorated building. तो I get tired, ये आ तो गया adjective. Why are you using reflexive pronoun? It is an objective case of pronoun. ठीक है, reflexive pronoun हो गया, me हो गया, them हो गया, ये तो pronoun है बच्चों. और pronoun है तो इन्हें object बोलो. और आप इस verb के बाद object लगा रहे हो, जबकि ये linking verb है. Linking verb takes adjective after them, not object. Object वाली verb कहलाती है transitive. जो एडवर्ब लेती हैं वो कहलाती है इंट्रांजिटिव. लिंकिंग वर्ब्स लेती हैं एडजेक्टिव. गेट लिंकिंग वर्ब है, गेट के बाद लिंकिंग एडजेक्टिव आएगा. ऑब्जेक्टिव केस क्यों लगा रहे हो? आई गेट टायर्ड, सीधा. माई सेल्फ इज रॉन्ग हेयर. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ माई सेल्फ हेयर. स्टूडेंट्स, डू दिस. क्वाइट इजी क्वेश्चन. डू दिस इमीडिएटली स्टूडेंट्स. Let me tell you, if you had remained calm, you could have saved the situation. I am just telling you students, they टेंस आपके 12 है बच्चों. 12 क्या सभी 12 टेंस दुनिया की हर हिंदी की इंग्लिश बना सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स. अगर तुम पढ़ लेते तो पास हो जाते. ये कोई भी टेंस आपकी मदद नहीं करेगा इस तरह की इंग्लिश बनाने के लिए. ठीक है, गेट बंद कर दो, कोई भी टेंस नहीं है, अलग से सीखना पड़ता है. तो गेट बंद कर दो के लिए V1 यूज की जाती है, क्लोज द डोर. तो अगर आपको पास्ट में इमेजिनेशन कर रही है, अगर उस टाइम ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, मैं ये कर देता, तो इसके लिए एक कंडीशन बनी है बेटा, थर्ड कंडीशन. इफ यू हैड स्टडीड, ये देखो हैड प्लस स्टडीड, अगर तुम पढ़ लेते. और रिजल्ट भी तो दोगे, इतना बोल के चुप थोड़ा हो जाएगी. रिजल्ट दोगे, वुड हैव V3, कुड हैव V3, यू वुड हैव पास, तुम पास हो गए होते. अगर तुम उस टाइम चुप रहते तो तुम्हें उस सिचुएशन से बच सकते थे. वुड हैव V3 लगा दे तो हो गया होता. कुड हैव V3 का मतलब हो सकता था, बच सकते थे. तो ये पास्ट की इमेजिनेशन है, पर इसका फॉर्मूला ये नहीं है बच्चों. इफ के साथ हैड V3 लगता है, ना कि हैव V3. ये थर्ड कंडीशन होती है बेटा. सेकंड कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, V2 लगता है. फर्स्ट कंडीशन में सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है. थर्ड 3 कंडीशन होती है, ये तीसरी है, क्योंकि यहां से पता लग गया वुड हैव V3 है या कुड हैव V3 है, दोनों आ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं. अकॉर्डिंग टू सेंस देयर इज अ रॉन्ग, यू शुड पुट हैड हियर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एरर देयर. ओके, ये करिए. रेस्ट आई विल स्पेंड, मैं स्पेंड कर दूंगा अपनी रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज, अपने गांव में. ओके स्टूडेंट्स, देख रहे हो ये सब आप? ओके, रेस्ट मीन्स ऑल्सो रिमेनिंग. सो ओके, so there is an error of superfluous. You should remove remaining or rest from there. There is no sense of both. Okay, let me tell you which one we will ignore. We will aboard. I will spend my rest of rest. If I rub this, then my of remaining is not an correct sentence. You should remove remaining. Okay, I will spend my rest of life. My rest of life is correct. My rest of remaining life nahi. My rest of life automatically means remaining. Okay, you should remove remaining students here from here. Okay. So error in this line. Okay, students. Next. I want to tell the meaning of two words yet and still. Both meaning are same, but there is little bit difference. Yet means from past, पास्ट से लेकर अब तक कोई बात करना. फ्रॉम पास्ट टू टिल नाउ, इसका मतलब भी यही होता है लगभग. फ्रॉम पास्ट से लेकर कोई बात अब तक करना बच्चों, अब तक. टिल, फ्रॉम पास्ट टू टिल नाउ, इट इज द मीनिंग. ओके, फ्रॉम पास्ट टू टिल नाउ स्टूडेंट. बट yet always use in negative sentence and in the end of, at the end of the sentence, at the end of the sentence. बिल्कुल sentence के end में use करते हैं yet को स्टूडेंट्स. और still you can use still before main verb and it gives positive meaning. So let me check, there is no negative sentence and the requirement is here before main verb, so you should use still. Let me tell you another sentence of yet. I have not seen the Taj Mahal yet. मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा. पास से लेकर अभी तक, पोजीशन भी देखो लास्ट में है और नोट भी लगा हुआ है. यहां पे देखो क्या है,
वी हैव टाइम टू कैच द, अभी हमारे पास टाइम है कैच करने का बस को, नहीं है नहीं बोला, अभी हमारे पास टाइम है बस को कैच करने का। और सेंटेंस भी पॉजिटिव है और पोजीशन भी मेन वर्ब से पहले, और येट लगता है मेन वर्ब से पहले स्टूडेंट्स, मेन वर्ब से पहले। ये मेन वर्ब है ना हैव, ये ना कहना हेल्पिंग वर्ब है ये, वो हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है तब हेल्पिंग वर्ब होती है। आई हैव अ कार, यहाँ पे हैव क्या है, मेन वर्ब है स्टूडेंट्स। ओके, मेन वर्ब हैव, यहाँ पर देखो मेन वर्ब है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, V1 है ये, ठीक है। बट यहाँ पर मैं करूँ आई हैव प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे हैव बेटा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ स्टिल हेल्पिंग और मेन के बीच में रख सकते हो तो, ठीक है। बट यहाँ मेन वर्ब से पहले रखते हैं, स्टिल को जहाँ नोट रखते हैं, और सेंटेंस भी पॉजिटिव है तो यहाँ स्टिल करो एरर इन दिस पार्ट, लाई इन दिस पार्ट। नेक्स्ट करो स्टूडेंट्स। दिस डॉग सीम्स टू बी फेरोशियस, हाँ ये जो डॉग है ये फेरोशियस लग रहा है, अदरवाइज इट इज हार्मलेस, अदरवाइज की यहाँ कोई सेंस ही नहीं। अदरवाइज का मतलब तो होता है अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम का मतलब ये कर दो अदरवाइज मैं ये कर दूंगा या नहीं आऊंगा कुछ और अलग से। बट यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन दिखानी है, ठीक है। येट आल दो लगा सकते हो, बट लगा सकते हो, कौन हाउ एवर लगा सकते हो, अदरवाइज की कोई सेंस नहीं। अदरवाइज ये द डॉग ये जो है डर रहा है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। डरावना है अदरवाइज नो, यहाँ बट लगाओ, बट इज करेक्ट है, अदरवाइज की नो सेंस, देयर नो सेंस हो अदरवाइज है, बट कह सकते हो पर वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, डरावना तो है। देखो द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड, लाई ले लेन, ठीक है। लेट गई बेड पे, सही है, लेटने की यही होती है सेकंड फॉर्म, लाई ले एंड लेन। लेट गई है, रखा नहीं है, ठीक है, इंट्रांजिटिव अब होती है ये, लेट गई है बेड पर, इंट्रांजिटिव। रखना होता तो आगे सीधा ऑब्जेक्ट आ जाता, क्या रखा, वो ट्रांजिटिव होता, ये सही है यहाँ तक। बिसाइड हर मदर, अपनी मदर के बगल में और सो गई, ठीक है, ये गलत है बेटा, बिसाइड। लेट मी टेल यू बिसाइड and besides difference, very very important preposition for your SSC exam students। beside and besides में difference, beside means next to me and besides mean in addition to students, in addition to। देखो मेरे पास कार है इसके अलावा बाइक भी है, ऐसे बोलते हो, आई हैव अ बाइक इसके अलावा, इन एडिशन टू, बिसाइड्स अ कार, बट ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, कि वो मेरे बगल में है। तो जिसकी स्पेलिंग एज अ सिंगुलर है, वैसे सिंगुलर प्लूरल तो नाउन में होता है, बस याद करने के लिए ट्रिक बना रहा हूं मैं कि जिसकी स्पेलिंग सिंगुलर है उसका मतलब पास में, जिसकी प्लूरल है उसका मतलब ज्यादा है, और प्लूरल का मतलब ज्यादा ही तो होता है बच्चों। बॉय का प्लूरल बॉय ज्यादा, तो बिसाइड्स प्लूरल वाला ज्यादा, ऐसे याद हो सकता है बेटा, प्लूरल वाला ज्यादा। और बट यहाँ सिंगुलर प्लूरल प्रीपोजिशंस में नहीं होता, नाउन में होता है, याद करवाने के लिए था स्टूडेंट। तो यहाँ बगल की सेंस आ रही है, के अलावा की सेंस नहीं आ रही, इन एडिशन टू की सेंस नहीं आ रही, वो बेड पे लेटा बगल में अपनी मांग, ठीक है। तो एरर इन दिस पार्ट, सो देयर इज अ प्रीपोजिशनल एरर। नेक्स्ट ये करिए, ही वेंट टू द बेड, ही वेंट टू बेड, ही वेंट टू बेड, डू बेड, ठीक है, कर सकते हो आप, फ्रेज है ये, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ही वेंट टू द बेड विद अ स्लाइट फीवर, वेंट टू बेड नहीं आएगा, गो टू बेड कर सकते हो, ये फ्रेज होता है गो टू बेड, वो तो सेकंड फॉर्म है, वो कोई दिक्कत नहीं, टेंस कोई भी यूज कर सकते हैं इफ देयर इज नो हिंट। ओके स्टूडेंट, वेंट टू द बेड विद अ स्लाइट फीवर, गो टू बेड होता है, बीच में कोई डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता, ए बेड द बेड, गो टू बेड, गो टू बेड बोलना सीख लो बार बार, गो टू बेड, वेंट टू बेड, गो, एक ही बात है, बस वो सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है बच्चों, रिमूव दिस दो। ओके, let me tell you students the another question, the city turned out to be very different to what he had expected। Okay students, you can use from preposition after different, not to, different take always from preposition after देखिए, let me give you an example, my life is very different than नहीं, you cannot use then, my life is very different than her life, you should use from after different। So there's an error in this part, there's a prepositional error, so you should use from after different, remove here। Okay, another sentence you can do also, your name precedes before mine in the list, क्या लिखा हुआ है, आपका जो नाम है
वो मेरे से पहले आता है लिस्ट में। बिफोर का ऑलरेडी मतलब ही यही होता है पहले, और प्रीसीड्स का मतलब भी यही होता है। आप कोई भी एक प्रीपोजिशन रिमूव कर सकते हैं। सुपरफ्लुअस बेस एरर है कि जैसे बिग ब्लंडर, बिग ब्लंडर, ब्लंडर ऑलवेज टेक्स बिग ब्लंडर, ऑलरेडी मीनिंग बिग मिस्टेक, सो यू डोंट नीड टू यूज बिग हेयर, so remove before. Okay, your name precedes mine। before का और precede का मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट, अवेल, अवेल बेस्ड क्वेश्चन है ये। अवेल, देखो मैं आपको बताऊंगा कुछ वर्ब जो हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेंगी। इंजॉय, अवेल, एब्सेंट। देखो सेंटेंस बनाते हैं हम इंजॉय से। आई एंजॉय द पार्टी, ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा ये। आई एंजॉय व्हाट, पार्टी, ले रखा है ऑब्जेक्ट, तो आपको कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट देने की, क्योंकि ले रखा है। बट एक और सेंटेंस देखो, आई एंजॉयड इन द पार्टी, इन द पार्टी। इस सेंटेंस में देखो बच्चों, एंजॉय ने ऑब्जेक्ट नहीं ले रखा। यू मत कहना एंजॉय तो यहाँ कर ही लेगा, पार्टी चल रही है तो कर ही लेगा, नहीं। यहाँ पे ढंग से ग्रामर वाइज देखो, पार्टी प्रीपोजिशन के पीछे, और प्रीपोजिशन के पीछे तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब ने ऑब्जेक्ट नहीं लिया और ये जगह खाली पड़ी है। और अब बताओ यहाँ मैं क्या लिखूं? अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिख सकते। कोई कहेगा मैंने क्लब में जाना एंजॉय कर लिया, कोई कहेगा मैंने बार एंजॉय कर लिया, कोई कहेगा मैंने उसका साथ एंजॉय कर लिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो हम क्या लिखे? जैसे मैंने आई लाइक लिख के खाली छोड़ दिया, और इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, क्या लिखोगे? कोई यहाँ पे हर लिख देगा, कोई यहाँ जिसको जो पसंद है वो लिख देगा, कोई सीमा लिख के भाग जाएगा, कोई रीटा लिख देगा, कोई कुछ, कोई ऐसे थोड़ा कोई भी कुछ लिखने देगा आपको। आपको पता है आई लिखा हुआ है तो इससे मिलता जुलता वर्ड लिख सकते हो। जैसे ही लिखा हुआ है तो आप पोजेशन के लिए हिज ही यूज कर सकते हो, यू नहीं कर सकते। सही ये भी है, ही हैज डन योर वर्क, उसने तुम्हारा काम कर दिया, ही हैज डन यूर वर्क। पर ये गलत है क्योंकि स्टार्टिंग में ही दे रखा है, तो ही के अलावा आप कोई वर्ड और यूर की बात ही नहीं हो, यू की बात करो, या तो ही हैड डन हिज वर्क। तो ऐसे आई के अलावा कोई और बंदा नहीं दिख रहा, तो आपको इसी को एंजॉय करवाना पड़ेगा। आई एंजॉयड माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, खुद को ही कर ले एंजॉय, कोई और तो है नहीं। अवेल भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अवेल के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत होती है। अवेल के बाद लिखो यू है, यूर सेल्फ, लगा दिया योर सेल्फ। और एक चीज याद रखना, अवेल के बाद योर सेल्फ लगाते हो ना, तो ये जो दिस अपॉर्चुनिटी है ना, यू ना कहना अवेल के पास ऑब्जेक्ट पड़ा तो है, नहीं पड़ा, ये ऑफ लगना था यहाँ बीच में, वो जो भी गायब कर रखा है, ये स्ट्रक्चर है पूरा, ये ऑफ का ऑब्जेक्ट था दिस अपॉर्चुनिटी। तो अवेल के पास ऑब्जेक्ट नहीं था बच्चों, तो हमने दे दिया योर सेल्फ। तो अवेल के साथ स्ट्रक्चर सीख लो बच्चा, अवेल माई सेल्फ, और फिर ऑफ लगा के वो उसका ऑब्जेक्ट बच जाएगा। पर अवेल के बाद माई सेल्फ लिखो और फिर ऑफ लिखो। अगर तुम यहाँ पे सोचोगे ऑफ भी ना लिखो, फिर तो इसके पास ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी, जैसे एंजॉय द पार्टी के पास है, ऑफ यहाँ आएगा, फिर आपको पता लगेगा अपॉर्चुनिटी तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है और इसको ऑब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने की आदत डाल लीजिए बच्चों अवेल के बाद। ये हो गया एरर, ये करिए। देखो बच्चों, डांटना होता है इसका मतलब, द मैनेजर टुक हिम एट टास्क, नहीं टुक, टुक समवन टू टास्क। टू टास्क का मतलब होता है किसी को डांटना। प्रीपोजिशन बेस एरर है, एक ईडियम है, एक फ्रेज है ये, टुक समवन टू टास्क। टुक हिम एट टास्क नहीं टुक समवन टू टास्क, तो यहाँ पे एरर हो गया, इस पार्ट में प्रीपोजिशन बेस एरर हो गया। हाँ, सारा पास्ट में चल रहा है बच्चों। ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी, वो मेरे से अनेबल था मेरी मदद करना, बिकॉज ही हैड बीन फेल्ड टू अरेंज द मनी। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंस नहीं आ रही है। वो क्वेश्चन नहीं है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, वहां बिफोर और आफ्टर चाहिए होता है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब बच्चों क्या होता है? पहले। तो यहाँ बिफोर से पहले जो घटना होती है उसे कहते हैं पास्ट का भी पास्ट। और यहाँ V2, जैसे 12th करने से पहले मैं 10th कर चुका था, तो यहाँ 10th वाली बात आ जाएगी और यहाँ आ जाएगी 12th वाली V2। ठीक है, उसके आने से पहले ट्रेन जा चुकी, तो ट्रेन पहले जा चुकी थी, उसको हेड V3 मिलेगी, बाद में मैं आया उसको V2 मिले। पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ साथ साथ चल रहा है। अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज साथ साथ है, बिल्कुल बिफोर आफ्टर नहीं है। वो अनेबल था मेरी हेल्प करने में। अब मैं कल 2-4 बातें करता हूँ। कल मैं उठा था, फिर ऑफिस गया था, फिर लोगों से मिला था, सबको V2 मिलेगी। यू डोंट नीड टू यूज हेड V3, क्योंकि कुछ भी बैक नहीं जा रहे। बिकॉज यहाँ पे देखो, और यहाँ हेड बिन भी लगाने की जरूरत नहीं है, पैसिव सेंस की जरूरत ही नहीं है। फेल अपने आप लिख जाओगे, वो फेल हो गया, ही फेल्ड। वाज फेल्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है, ही फेल्ड, बात खत्म। ठीक है, अनेबल था मेरी हेल्प करने बिकॉज ही फेल्ड। पैसिव सेंटेंस की जरूरत ना हो तो कोई जरूरत नहीं होती। जैसे ही स्टार्ट लिख दो, वो स्टार्ट हो गया, कोई जरूरत नहीं है इसमें। वो स्टॉप हो गया, ही स्टॉप्स, या ही स्टॉप। सेकंड फॉर्म लगानी है तो ही स्टॉप, वो रुक गया। तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट पैसिव सेंस बनाने की। अगर वो फेल करवाना है तो ही फेल्ड लिख दोगे, वो हो गया। तो सारा पास्ट में चलने दो, एरर हो गया यहाँ पे टेंस का। यहाँ बीन भी सही नहीं है, पैसिव सेंस की जरूरत ही नहीं है, उसे फेल कर दिया गया नहीं है। नेक्स्ट, नहीं तो लिखा होता वाज, इसके द्वारा फेल किए। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बताइए।
क्या हो गया? क्या क्वेश्चन रह गई? ओके स्टूडेंट, देखिए, ही ऑफन परसिस्ट टू आस्क ऑकवर्ड क्वेश्चन एट द बोर्ड मीटिंग। वो हमेशा, परसिस्ट का मतलब होता है लगातार किसी चीज को करते रहना, लगा बने रहना। वो हमेशा ऑफन लगा हुआ है तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगेगा, सेल्डम, ऑफन, डेली, यूजुअली लगता है। ये रूटीन बताते हैं, हमेशा करता है ना, बना रहता है और आस्क करता है बेकार के क्वेश्चन बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, एट द बोर्ड मीटिंग सही है। बट मैं आपको बता दूं बच्चा, परसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा इन आती है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत है अगर आप आगे इन लगा के सेंटेंस को नहीं चलाते। अब मेरी बात बताओ, इन आ गया, प्रीपोजिशन आ गई बच्चों, और प्रीपोजिशन के बाद तो बच्चों नाउन आते हैं हमेशा, ठीक है, एट बस स्टैंड, ऑन रूफ, ऑन चेयर। बट कई बार वो वर्ब दे देता है, मैंने कई बार बताया प्रीपोजिशन के बाद वो वर्ब दे देता है, तो उसे नाउन बनाओगे क्योंकि आना नाउन ही है। और वर्ब को V1 को नाउन बनाने का एक तरीका है ING लगा के, एडवांस वर्ब, या फिर 2+V1 लगा के, तो ये नाउन बन जाता है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा 2V1 वाला नाउन यूज नहीं करते, वो वर्ब के बाद कर लेते हैं कई बार। आई वॉन्ट, अब यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, मैं यूं भी लिख सकता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। बट प्रीपोजिशन के बाद हमेशा 2+V1 यूज करोगे तो ऐसा लगेगा दो प्रीपोजिशन एक साथ आ गए हैं, इसलिए प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा जेरेंड वाला नाउन यूज कर लो। जब भी वर्ब आए उसे नाउन बनाने का तरीका क्या है, जेरेंड बना लो। अब यहाँ इन आ गया और आगे वर्ब है आस्क, नाउन तो नहीं है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन आते हैं, तो आप इस वर्ब को, इस आस्क वर्ब को आप नाउन बना लो, तभी आपका सेंटेंस ठीक होगा। और वर्ब को नाउन बनाने का तरीका है उसके पीछे ING डाल दो। जैसे शुरू में आपने देखा होगा कई बार, स्विमिंग इज ए गुड हैबिट, तो ये नाउन ही तो है बच्चों, ठीक है। तो प्योर नाउन होता तो ING नहीं डालेंगे, क्रिकेट के पीछे ING नहीं लिखोगे, राम के पीछे ING नहीं लिखोगे, फिर तो आपको प्योर नाउन मिल गया। अगर वो वर्ब दे दे तो नाउन बनाने का तरीका है ING कर दो पीछे, नाउन बन जाएगा क्योंकि ये भी नाउन होता है। इन आती, अब ये टू आस्क नहीं, जेरेंड आएगा, परसिस्ट इन आस्किंग। तो पहले सीखा बच्चों आपने, परसिस्ट के बाद फिक्स प्रीपोजिशन इन आएगी, देन यू शुड लर्न आफ्टर प्रीपोजिशन यू ऑलवेज यूज जेरेंड आस्किंग। तो एरर हो गया बच्चों इस पार्ट में। ये थे क्वेश्चंस आपके बच्चों, ठीक है, 500 क्वेश्चन ये आपके हो गए। आई होप you have enjoyed the class. You can recommend this video course to all your friends. Thank you.